ہماری پیاری زباں اردو، ہمارے نغموں کی جاں اردو، ہنسی دلکش جواں اردو۔ شہر گلستان بنگلورو میں آج جشن یوم اردو منایا گیا ہے۔ اردو کی آن بان شان کا مظاہرہ ہوا ہے۔ محفل نساء کے تحت جشن یوم اردو کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے ترانے کے ساتھ مختصر ریلی نکالی گئی۔ علی گڑھ سے آئے پدم شری حکیم سید ذی الرحمان شاہین تعلیمی ادارہ جات بیدر کے چیئرمین ڈاکٹر عبد القدیر، سینئر IAS آفیسر محمد محسن، کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق صدر عزیز اللہ بیگ، اعجاز علی جوہری، NT ملا و دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پہ موجود تھیں۔ محفل نساء کے صدر شائستہ یوسف، محفل کے دیگر ارکان بھی اور بھی کئی شخصیات جلوہ افروز تھیں۔ یوم اردو کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ اردو ہماری تاریخ، تہذیب، ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ اردو سے دوری ہمارے وجود کو ختم کر دے گی، لہٰذا والدین اپنے بچوں کو اردو سکھائیں۔ اردو کے فروغ کے لیے اردو انجمنیں، اکیڈمیاں فعال رول ادا کریں۔ اردو کا مستقبل روشن تھا، ہے اور رہے گا، بس اردو والے اپنی مادری زبان کا حق ادا کریں۔ محفل نساء کے ساتھ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی اور ہندوستانی اردو منچ نے بھی یوم اردو کے انعقاد میں اہم حصہ لیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ دوستو، ہر سال کی طرح اس بار بھی شہر گلستان بنگلور میں یوم اردو، جشن یوم اردو منایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ سے سفر کرتا ہوں، راہ دشوار بھی ہوتی ہے تو سر کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں نعت شریف کے لیے آواز دوں، ظفر محی الدین صاحب پہلی نشستوں پر تشریف لائے ہیں۔ الانبیاء خاتم المرسلین، میرے پیارے نبی تم سا کوئی نہیں، سید الانبیاء خاتم المرسلین، سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ چاند سے بڑھ کے ہے تیری پیاری جبی، چاند سے بڑھ کے ہے تیری پیاری جبی، میرے پیارے نبی تم سا کوئی نہیں، سید الانبیاء خاتم المرسلین، سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ ہے صحابہ ستارے تو چاند آپ ہے صحابہ ستارے تو چاند آپ ہے، بلکہ وہ چاند سے آپ زیادہ ہنسی، سید الانبیاء خاتم المرسلین، سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ آقا معراج والے کی کیا شان ہے، آقا معراج
ताज वाले की क्या शान। मोहम्मद हर दर्द की दवा सुन, सल्ले अला मोहम्मद। 2 साल से सारे आलम में एक ही मौसम आया हुआ है वो मौसम है जंग जदाल का मौसम। ये मौसम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस दौरान हम इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उसका दर्द, वो जख्म अपने सीनों में छुपाए हुए उर्दू का जश्न मना रहे हैं। हम आज जश्न उर्दू से इसी मौसम पर असर अंदाज होने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि उर्दू की चाशनी से अमन की बस्तियां बनाएं, अमन की बस्तियां बसाएं, उर्दू की गंगा जबनी तहजीब का शऊर पैदा करें और माशरे में इसका निफाज अमल में लाएं। हिंदुस्तानी उर्दू मंच और अलमीन एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से जश्न यौम उर्दू आज यहाँ इसी मुनासिबत से हम सब जमा हैं। इस जश्न की सदारत फरमा रहे हैं साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी और साबिक IAS ऑफिसर जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हुकूमत कर्नाटक में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद मोहसिन साहब, जो अवाम परवर इंतज़ामिया के लिए शोहरत रखते हैं और उर्दू के कास के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ख़ुद उन्होंने अपने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में उर्दू को भी इख्तियारी मजमून के तौर पर लिया था। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूह रवां डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब तशरीफ़ रखते हैं और साथ हैं हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर जनाब एजाज अली जौहरी साहब, इसी इदारे के सेक्रेटरी जनाब एनडी मुल्ला साहब, और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में अपनी गिरां कदर खिदमात के लिए कदर की निगाहों से देखे जाते हैं जनाब मिलन सारत रहमत साहब, जो साबिक डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर अभी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आप सबका महफिल निसा की जानिब से दिली खैर मकदम करता हूँ और आप ख़वातीन व हज़रात जो इस कसीर तादाद में उर्दू नवाजी उर्दू दोस्ती के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आपने रौनक में इस तकरीब के गिरां कदर इजाफा किया है। आप सबका भी फर्दन फर्दन मैं दिली इस्तकबाल करता हूँ। साहब की खिदमत में महफिल निसा और जो बाहरी इश्तराकी इदारे हैं उनकी जानिब से तहनीत पेश की जाए। जनाब फयाज कुरैशी साहब तशरीफ रखते हैं, तशरीफ लाएं। अजीजुल्लाह बेग साहब की कुल कोशिश फरमाएं, खिदमत में तहनीत पेश करें। सर इधर देखो, थोड़ा साइड में जाओ, थोड़ा साइड में जाओ। जनाब मिलन साहब अतर अहमद साहब की खिदमत में तहनीत पेश करें। इधर इधर इकबाल बेग साहब प्रोफेसर मीनून सईद साहब की खिदमत में तहनीत पेश करेंगे। नाटक उर्दू अकेडमी सईद साहब की खिदमत में इकबाल अहमद साहब, जनाब एजाज अली जौहरी साहब, शफीक आबिदी साहब, एनडी मुल्ला साहब साबिक पुलिस अफसर और हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सेक्रेटरी, आपकी खिदमत में भी तहनीत पेश करेंगे। इधर सर इधर देखो सर, की अदबी खिदमात और कालम निगारी पर
उनके दिल में मादरी ज़बान से जुड़े रहने का एहसास पैदा करना और गैर तालीम याफ्ता ख़वातीन में तालीमी, अदबी और सकाफ़ती शऊर बेदार करके उन्हें अपने दौर के चैलेंजों से आंख मिलाने के काबिल बनाना है। जुलाई सन 2012 में इस तंजीम का रजिस्ट्रेशन अमल में आया और अक्टूबर 2012 में इसकी इफ्तिताही कार्रवाई सर अंजाम दी गई। आलमी सतह पर ये बात तस्लीम की जाती है कि ज़बानें हमारे ठोस और गैर महसूस दोनों तरह के विरसों की हिफाजत का सबसे ताकतवर ज़रिया होती हैं और मादरी ज़बान की नश्र व इशाअत का हर इक़दाम न सिर्फ ज़बानों की कसरत को फ़रोग़ देता है बल्कि आलमी सतह पर ज़बान और सकाफ़त की रिवायात को मजबूत बनाकर समझदारी, भाईचारगी और एकताई को बढ़ावा देता है। यूनेस्को की जानिब से मुकर्रर किए गए बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान IMLD यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की अहमियत को सामने रखते हुए बहैसियत मादरी ज़बान उर्दू ज़बान की क़द्र क़ीमत और उसके फ़रोग़ को मनवाने के लिए महफ़िल निसा ने यौम उर्दू मनाने का फ़ैसला किया। दुनिया भर में चूँकि हर बरस 21 फरवरी को आलमी सतह पर IMLD मनाया जाता है, चुनांचे महफ़िल निसा ने भी फरवरी ही में यौम उर्दू मनाने का मंसूबा बनाया। यौम उर्दू के सिलसिले में इसने इसी साल यानी 2012 में गुलबर्गा, बिदर, बीजापुर और मैसूर में वहाँ के शायकीन उर्दू और उद्बा व शोरा की मदद से महफिल अपनी शाखें मुकर्रर की और हर एक मुकाम पर उर्दू के सरकारी और निजी स्कूलों में उर्दू सितारों की खोज के नाम से कुल 8 मुख्तलिफ नौ मुकाबलों का आगाज किया। अलीपुर, हासन, मंडिया और गौर व फिक्र करना और उनका हल तलाश करना भी महफिल निसा के लाए मानों में शामिल है। इन मकासद के तहत कभी कभी सेमिनारों का एहतमाम भी किया जाता है। हर साल डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ सदर, डॉक्टर हलीमा फिरदौस नायब सदर, डॉक्टर जुबैदा बेगम नायब सदर, डॉक्टर मोहम्मद जमानी सेक्रेटरी और डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। हम कह सकते हैं कि महफिल निसा एक ऐसी तंजीम है जो उर्दू बचाओ तहरीक का अमली सबूत है। इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट खत्म करती हूँ। शुक्रिया। अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब, जनाब मेमनून सईद साहब, जनाब अब्दुल कदीर साहब, जनाब मोहसिन साहब, जनाब एजाज अली साहब, जनाब मिलनसार साहब, जनाब एनडी मुल्ला साहब, पद्मश्री सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब, गौसर सलाम साहब, ज़फ़र मुहिद्दीन साहब, इक़बाल अहमद बेग साहब और तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इतने बाशऊर हाज़रीन को देखकर, ऐसी महफिल को देखकर बहुत दिल खुश हो गया। तो अगर आप लोग ना होते तो शायद ये जलसा इतना बारानक ना होता। जलसे के मुतालिक मैं एक बात कहना चाहती हूँ। लोगों ने हमेशा सोचा कि जलसे जुलूस क्यों निकाले जाते हैं और जलसे क्यों किए जाते हैं, मेले क्यों लगाए जाते हैं, क्या मेलों की हमें ज़रूरत है, क्या इन जलसों की हमें ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है, इंसान की अकेला कभी नहीं रह सकता और वो समाज में वही इज़्ज़त चाहता है, वही दोस्ती चाहता है, लोगों के साथ चलना चाहता है। इसी तरह समाज की इब्तिदा हुई, इसी तरह तहजीब की इब्तिदा हुई, इसी तरह हुकूमतें बनी। अगर लोग तन्हा तन्हा रहना चाहते तो कभी हुकूमतों का इनेकाद ही नहीं होता, कहीं बस्तियाँ ही नहीं बसती। इसके अलावा जब भी मेला होता था, पहले यही रिवाज था कि अपनी जो कुछ इजादात हैं उसको दिखाया जाता था कि किसी ने कोई ख़ास काम किया है, किसी ने किसी चीज़ को ईजाद किया है, किसी ने कोई अनोखा काम कर दिया है, या साइंस में कोई तरक्की की है, या उसकी कोई नई चीज़ सामने आई है, कोई तारीख़ में कुछ कर रहा है, तो उसको लाने के लिए ऐसे मौक़े ढूंढे जाते थे और यही किया जाता था। हमने भी उसी रविश को अपनाया है। हमने भी यही चाहा कि जिन लोगों ने अपना काम
कुछ हट कर किया है, जिन लोगों ने उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिन लोगों ने तहजीब और सकाफ़त के लिए मेहनत की है, हम उनको लोगों के सामने लाएं और पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम हो। लेकिन जैसे पहले से ही लोग पद्मश्री साहब या ज़फ़र साहब या बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह अपने आप में एक महफिल है, अपने आप में एक शमा रोशन किए हुए हैं और सभी लोग उन्हें जानते हैं। ये कहना बजा होगा कि हमारा अवार्ड बहुत छोटा है उनके लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने हमारा अवार्ड कबूल करने के लिए हमें इस बात का मौका दिया। जहाँ तक उर्दू अदब या किसी भी अदब या लिटरेचर और फाइन आर्ट्स का ताल्लुक़ है, जब तक लोग फाइन आर्ट्स की कदर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि उस अहद में क्या काम हो रहा है। अगर किसी अहद को बहुत अच्छा आला पैमाने पर देखते हैं, जब ये देखते हैं कि उस अहद में बहुत तरक्की हुई, तो आपको ये एहसास होगा कि उस अहद में लिखने पढ़ने वालों ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया। कुछ ऐसे ग्रुप्स रहे, कुछ ऐसे अदीब रहे, कुछ ऐसी महफिलें रहीं जिन्होंने अपने तौर पर उन बातों से आगाह करवाया जिनसे हुकूमत भी नावाकिफ थी। तो आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आज भी ऐसी अदबी महफिलों की ज़रूरत है, आज भी ऐसे ही बाशऊर लोगों की ज़रूरत है, ताकि वो गाहे बगाहे हुकूमत को एहसास दिला सके कि उन्हें ज़बानों की तरफ कैसे देखना है, उन्हें सकाफ़त की तरफ कैसे देखना है, उन्हें ऐसे लोगों को ले आना है जो हुकूमत को सही रास्ता दिखा सकें। अगर अकबर के साथ नवरत्न न होते तो शायद मुगलिया सल्तनत इतनी तरक्की ना करती या उसका नाम अकबर ना होता। लोग समझते हैं कि लीडर चलता है, लीडर की कार्रवाई होती है। दरअसल लीडर के बगैर भी अगर साथी ना हो तो लीडर भी बेईमानी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे इतने अच्छे साथी मेरे साथ हैं। उसके अलावा अगर इस दौर में देखें तो जैसे अब अनी साहब बैठे हुए हैं और सबिया जुबैर हैं, सईदा साहिबा हैं, महमूद साहब हैं, जुबैदा बेगम हैं और तमाम मैं कहूँ तस्नीम साहिबा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमें खुशी है कि सब अपनी अपनी जगह कोई ना कोई मंजिल, कोई ना कोई महफिल रखते हैं। देखिए मंजू वेंकटी जो वहाँ से देख रही है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, बल्कि वही शामिल है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कई लोग हैं, शफीक आबदी साहब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जगह अपनी अपनी महफिलें सजा रखी हैं। अब हमें करना ये है कि जैसे हमने काम किया है, हिंदुस्तानी उर्दू मंच ने ये तमाम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी दिल से उनके साथ जुड़ें, बल्कि तमाम लोगों को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलकर उर्दू की शमा को रोशन रखें। दोस्तों, जश्न उर्दू में सीनियर IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन साहब शामिल हुए हैं। क्या पैगाम रहेगा मोहसिन साहब आज के इस खुशी के मौके पर, जश्न के मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। महफिल ने ये उर्दू की तरवीज और इशाअत के लिए ये प्रोग्राम किया है, तो और ख़ास करके खुसूसी मेहमान को वहाँ अलीगढ़ से बुलाया है, ये बहुत काबिल तहसीन कदम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस उर्दू की तरवीज और इशाअत में हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमारी विरासत है, ये हमारा हेरिटेज है। इसको बढ़ाने के लिए हर एक तबकों को आगाना चाहिए, चाहे उर्दू एकेडमी हो या NGO हो, सिविल सोसाइटी हो, और ख़ास करके टीचर हजरात जो हैं, ख़ासकर कर्नाटका में कहना चाहूँगा, उनकी भी बहुत ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हर आदमी इसमें अपना अपना हाथ जोड़े और शरीक करे, जिसको जितना हो सकता है वो करे। तो उम्मीद है कि उर्दू का मुस्तक़बिल है
روشن ہے اور اس کو اور روشن بنانے کے لیے ہم سب کی محنت ضروری ہے. بیدر کے شاہین تعلیمی ادارہ جات کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب موجود ہیں, جشن اردو میں شامل ہوئے ہیں. فرمائیے. جی ماشاءاللہ, جشن اردو یہاں پر پابندی کے ساتھ بنگلور میں بڑے پیمانے پہ منایا جاتا ہے. ظاہر ہے اپنی مادری زبان کی ترقی کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے, اور مادری زبان سے محبت بھی فطری بات ہے. لیکن افسوس ہے کہ اردو رفتہ رفتہ زبان کے بجائے بولی بنتی جا رہی ہے. یعنی نئی جنریشن اردو ظاہر ہے لکھنے اور پڑھنے کے موقف میں نہیں ہے, جو بڑی خطرناک رجحان ہے, جس کے لیے ہم سب کو سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے. چاہے کسی بھی میڈیم میں پڑھیں, فطرتاً میڈیم آف انسٹرکشن تو مدر ٹنگ ہی ہونا چاہیے, ذریعہ تعلیم مادری زبان ہی ہونا چاہیے. لیکن حالات اتنے بگڑ گئے ہیں, مادری زبان میں تعلیم تو دور کی بات ہے, اردو زبان لکھنے پڑھنے سے نسل ناواقف ہے اور یہ بولی بنتی جا رہی ہے. اس پہ سنجیدگی سے توجہ دیں. ہر اسکول میں اردو کو دوسری لینگویج یا تیسری لینگویج کے طور پر ضرور پڑھائیں. ہمارے پاس تجربات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم 10th اسٹینڈرڈ میں بھی اگر کوئی بچہ آ کر ایڈمیشن لیتا ہے اور وہ اردو زبان نہیں لیا ہے تو ہم اس کو اردو زبان کمپلسری ہے, کسی بھی صورت میں کمپلسری ہے, اور ہم مہینے 2 مہینے میں اس کو اردو زبان سکھا دیتے ہیں اور اردو سے واقف کرا دیتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ یہ بچے 10th تک اگر اردو لکھنے پڑھنے کے موقف میں رہیں گے تو زندگی بھر کے لیے کورے رہ جائیں گے, محروم ہو جائیں گے, اپنی مادری زبان کو لکھنے پڑھنے سے قاصر رہیں گے. اور دنیا میں کوئی قوم جو ہے ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو اپنی مدر ٹنگ لکھنے اور پڑھنے سے واقف نہیں ہے اور تعلیم یافتہ کہلائی جاتی ہے. صرف بر صغیر میں یہ ماحول بن رہا ہے. اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اردو اپنی نسل کو سکھانا چاہیے. اس کے لیے کئی طریقے ہیں, کئی جگہ کوششیں ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ بنگلور میں اردو منچ جو ہے یہ کام کر رہا ہے, دیگر ادارے کام کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے تجربات سے واقف ہوتے ہوئے سب مل کر ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ نئی نسل کو ان کی اپنی مادری زبان سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اس وقت معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے آج کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے, مجھ کو بیحد خوشی ہوئی کہ محفل نساء بنگلور اور ہندوستان اردو منچ اردو کے سلسلے میں یہاں اس قدر کام انجام دے رہا ہے. دیکھیے, اردو صرف ہماری زبان نہیں ہے بلکہ ہماری پوری تہذیب, ہماری تاریخ, ہمارا ماضی, ہمارے بزرگوں کے نام, ان کے کارنامے سب اردو کے ذریعے سامنے آتے ہیں. اگر کسی شخص کو اردو نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بے بہرا ہے ہماری تاریخ اور تہذیب سے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بنگلور میں نہ صرف یہ دونوں انجمنیں اردو کے لیے اس قدر کام کر رہی ہیں بلکہ بنگلور میں اردو کا ان لوگوں کی وجہ سے ایک بڑا سلسلہ ہے, اور نئی نسل بھی ہماری اردو پڑھ رہی ہے اور اردو سے آشنا ہو رہی ہے. تو میں بیحد تبریک و تحسین کرتا ہوں ان دونوں انجمنوں کی کہ وہ اس طریقے سے جشن اردو کا انعقاد کرتے ہیں. اردو کے مستقبل پر بار بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو حالات حاضرہ ہیں, کیونکہ اردو تعلیم کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے, اردو اسکولیں بند ہوتی آ رہی ہیں. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. 1947 میں ہم جہاں تھے وہاں آج کی نسل اور آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں تھے. ہمارے بزرگوں نے محنت کی اور ہم کو زمین سے اٹھا کے یہاں تک لے آئے. ہمارا گراف نیچے نہیں جا رہا ہے, ہمارا گراف اوپر اٹھ رہا ہے. اور ہم آزاد ہندوستان میں تقریباً 11-12 یونیورسٹیاں بنا چکے ہیں, ہم میڈیکل کالج بنا رہے ہیں, ہماری تنظیمیں ہیں, ہماری آرگنائزیشنس ہیں, ہمارے اخبارات نکل رہے ہیں. بالکل مایوسی کی بات نہیں ہے. یہ اردو والوں نے خواہ احساس کمتری اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے کہ اردو کا زوال, اردو نہیں آ رہی. اردو سوائے یو پی کے اردو کا مسئلہ کہیں نہیں ہے. بہار, بنگال, دلی, اب دلی جیسے شہر کے اندر اردو کے پرائیویٹ اسکول ہیں, اردو کے دلی ایڈمنسٹریشن کے اسکول ہیں, اردو میونسپل کارپوریشن کے اسکول ہیں, جامعہ کے تحت اسکول ہیں. تو ہر جگہ اردو ہے سوائے یو پی کے, اور وہاں پر مدارس اور مکاتب نے جگہ سنبھال لی ہے. اور اس کثرت سے وہاں مکتب ہیں, مدرسے ہیں جہاں سب جگہ اردو پڑھائی جاتی ہے. ہمارے اخبارات نکل رہے ہیں, دلی جیسے شہر سے 10-11 اردو کے روزنامے نکل رہے ہیں اور کتابیں چھپ رہی ہیں, خوب فروغ پا رہی ہے. یہ روشن ہے, بالکل یہی بات سامنے آ رہی ہے. بتائیے عزیز اللہ بیگ صاحب, خوشی کا موقع ہے آج. جی ہاں, محفل نساء کئی برسوں سے, تو 1 دہائی سے تقریباً
हर साल जश्न यौम उर्दू मनाती आ रही है और उसमें खुशी इस बात की है कि इसमें उर्दू असातिज़ा और उर्दू तलबा को शामिल किया जाता है। इससे उनकी हौसला अफजाई होती है, उन्हें आगे बढ़ने की का जोश, लगन और हिम्मत उनकी बढ़ती है। ये बहुत खुशाइंद है और इस सिलसिले को इसी तरह जारी रहना चाहिए। उर्दू की खूबी और उसकी खूबसूरती से सब लोग वाकिफ़ हैं और इसे मज़ीद जो है आम करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें हुकूमत को तो हम बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार इसका ठहरा नहीं सकते। ख़ुद उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़बान को संभालें, अपनी ज़बान की आबियारी के लिए कोशिश करें, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बक़ा के लिए काम करें। हमें कोई नहीं रोकता कि हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। अफसोस इस बात का है कि हमारी रियासत में कम से कम वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाना चाहते। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। उन्हें इल्म नहीं है कि वो उर्दू से नाता तोड़कर क्या क्या खो रहे हैं, अपना विरसा, अपनी तहज़ीब, अपना पूरा माजी, अपनी तारीख़, सब कुछ खो रहे हैं। इसका उन्हें अंदाज़ा तक नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम जश्न यौम उर्दू मना रहे हैं। तो शुरुआत में जब मैंने उर्दू दोस्त अवार्ड के लिए जब मैं आई तो मैंने सब कुछ से यही कहा कि मुस्कुराइए कि हम जश्न मना रहे हैं, क्योंकि लोगों के चेहरे पर इतनी उदासी रहती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब भी उर्दू का जिक्र होता है या उर्दू का नाम होता है तो चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार होने चाहिए। और इसीलिए मैंने यही शेर कहा उनसे कि सात दिल के है वो भी पहलू में, सात दिल के है वो भी पहलू में, लुत्फ़ जन्नत है इसकी खुशबू में। लिखना पढ़ना ही क्या कि हम अक्सर, लिखना पढ़ना ही क्या कि हम अक्सर मुस्कुराते भी हैं तो उर्दू में। जी, और उसके साथ हाँ, मैं महफिल निसा की सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा और उनकी तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो उर्दू इंतशार और बेजारी के माहौल में भी जश्न यौम उर्दू मना रही हैं और गुज़िश्ता 13 सालों से मनाती आ रही हैं। तो ये उर्दू के मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। हमारे लोगों को, जो लोग उर्दू से वाबस्ता हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, उनको उर्दू से रब्ता हमेशा रखना चाहिए। इस ज़बान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस ज़बान में हमारा मजहबी सरमाया है। अगर हम अपनी ज़बान से दूर हो गए यानी हम अपने मज़हब से दूर हो गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बातें तो हम बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन उसको ग्रास रूट लेवल पर उसको काम करने की ज़रूरत है। उर्दू स्कूलों में असातिज़ा को उर्दू पढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे हमेशा से ये शिकायत रही है कि उर्दू असातिज़ा अच्छे तरीके से बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी, गुजारिश करूँगी, बल्कि उर्दू की तमाम स्कूलों में अली सरदार जाफरी का वो तराना उर्दू शामिल करना चाहिए, जिसमें उन्होंने उर्दू की खूबसूरती की इतनी बेहतरीन बात की है कि हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू, हमारे नगमों की शान उर्दू। ये वो ज़ुबान है कि जिसको गंगा के जल से ताजगी मिली है, अवध की ठंडी हवा के झोंकों से जिसके दिल की कली खिली है, जो शेर नगमा के रेगजारों में आज कोयल सी कूकती है। हमारी प्यारी ज़ुबान उर्दू, हमारे नगमों की शान उर्दू। और इसी तरह से महफिल निसा की जो है अज़ाइम जवान है, हसीन दिलकश है, बिल्कुल उर्दू ज़ुबान की उन्होंने आखिर में कहा है कि हसीन दिलकश जवान उर्दू। और जहाँ पर अज़ाइम जवान होते हैं तो मंजिलें कदम चूमती है। जवान हो अज़्म तो मंजिलें कदम चूमे, जवान हो अज़्म तो मंजिलें कदम चूमे। जो चल पड़ो तो कोई रास्ता दकीक नहीं, कोई रास्ता मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि उर्दू सीखने सिखाने का रास्ता भी मुश्किल नहीं है। तो उर्दू सीखिए, उर्दू पढ़ाइए और उर्दू पढ़िए। ये यौम उर्दू का प्रोग्राम जो है हम साल की तरह इस साल भी बड़ी अच्छी ग्रैंड से मनाया गया। और हिंदुस्तानी उर्दू मंच में जो है सदाए महफिल निसा के जो है ख़वातीन हज़रात जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके मशवरे पर कुछ हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं हिंदुस्तानी उर्दू मंच सेंटर में। और उस तरह से जो है यहाँ भी बड़ा ग्रैंड से प्रोग्राम हुआ। इंशाअल्लाह जो है और प्रोग्राम से हमने ऑफ़र किया है उर्दू के इसके जुड़े हुए इसके लिए। और हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं कि उर्दू स्कूल्स को अडॉप्ट करें। उर्दू स्कूल्स को अडॉप्ट करके कम से कम 20 स्कूल अडॉप्ट करने का हमारा इरादा है। हमने स्पीच में भी बोला है। और हमारे साथ जो है पूरे इदारे, पूरे बेंगलुरु के जितने भी अंजुमनी इदारे हैं उनको साथ लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तक उसको चेक इरसाल फरमा देंगे 10,000 रुपए का।
मोहतरमा सदर महफिल और मज़ीद मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। आज महफिल निशा और आलमी एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से जो अवार्ड मिला, ये सिर्फ मेरे लिए अवार्ड नहीं बल्कि उर्दू ज़बान से मोहब्बत का एतराफ़ है। 10वीं जमात में उर्दू ज़बान में 125 में से 125 नंबरात हासिल करना ये एक खौफ सच होने जैसा है। इतने कहते हैं मैं